Hello my friends, welcome to BEducare. So in the series of all the top B schools, let's discuss in detail about the SPJIMR. The SP Jain Institute of Management and Research. We'll talk in detail about it. Guys, one of the best institute in India and you can place it at number first place. Yes guys, we'll talk in detail about it. We'll talk about its eligibility criteria, programs and the cutoff, admission process कैसे होने वाला है, selection process क्या है, क्या weightage मिलने वाला आपके 10th 12th graduation. We'll talk about the phases of selection process, the first phase and even the second phase. Exactly क्या है, we'll talk in detail. We'll talk about the fee structure and we'll also discuss about the placement stats. So overall क्या ROI मिल सकती है guys, it is India's #1 institute. Yes guys, you heard it right. अगर CAT के थ्रू आप चाहते हो कि मुझे IIM टारगेट करना है एंड इफ आप सोचते हो कि भाई IIM कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, then guys go for the SPJIMR. Amazing stats guys, amazing facilities, situated in the financial capital of India in the Mumbai. So best institute. So watch this particular video till the end. जो भी आपके doubts है you can ask me in the below comment section. And wanna preparation for the CAT, you can join our batches, join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan India student, you can interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. Bharati Vidya Bhavans SPJIMR, established in 1981 in Mumbai, the financial capital of India, is a leading postgraduate management institute in India. SPJIMR is known across the student community for its teaching excellence and across the industry for the quality of its graduates. And अगर मैं इनके alumni की बात करूँ, then guys it has strong alumni base, more than 15,000 plus. 4 centers of practice act as a knowledge translation and student engagement hubs for the selected communities. Positive impact rating, a Swiss associations as one of the top 5 business schools worldwide in terms of the social impact. So guys, ranking देख लो, गजब की ranking है. Is an AICTE approved tier 1 MBA institute accredited by the association to the Advanced Collegiate School of Business, ASCSB accredited institute. Also the association of EMBA and positive impact guys at level 5, the top 5 business school worldwide. NIF ranking की बात करूँ then comes at 20th place. Business Today की बात करूँ then top 5 business schools in India. And Financial Times की बात करूँ then India's #1 institute and even 40th globally. Better ranking than some of the new IIMs which are at 70th or 80th in the list. Guys, great. So let's move ahead. Programs and seat intake. So here for your flagship program, the postgraduate diploma in management, there are 240 seats. Overall seats की बात करूँ then it is 276 because 36 seats to be filled exclusively by international students including person of Indian origin, PIOs, OCI and CIWGC and even the foreign nationals. Note, SPJIMR does not have any quota. So यहाँ कोई भी कोटा नहीं है, कोई कैंडिडेट पर्टिकुलर कैटेगरी से नहीं है, हर एक कैंडिडेट एक ही तरह से ट्रीट होने वाला है. इवन मैनेजमेंट कोटा नहीं है. द असेसमेंट ऑफ एन एप्लीकेंट इज ऑन बेसिस ऑफ हिज और हर प्रोफाइल, the qualifying entrance score and the interview process. SPJIMR communicates directly with the all shortlisted candidates. Directly आपसे बात होने वाली है, कोई middleman नहीं होने वाला यहाँ. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट आप परस्यू कर सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम, पीजीएम प्रोग्राम फॉर विमेन ऑल्सो. यहाँ आपके लिए 0 to 5 years का एक्सपीरियंस है, भैया आप आ सकते हो. रेस्ट यहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मिनिमम एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर एलिजिबल. क्या फ्रेशर्स को चांस मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, बात करते हैं इन डिटेल. सो फ्रेशर्स आर अलाउड. हियर यू कैन सी फ्रेशर्स 17%, वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट 83%. एजुकेशन की बात करूँ, हर कोई कैंडिडेट है गाइस यहाँ. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड इवन अदर्स. सो ओवरऑल भाई आप इसे टारगेट कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स. रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इट. कोई कोटा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आप फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट हो, appearing candidate, you are eligible. Those who have completed the degree requirements and are awaiting the results can also apply and there is no age bar. So भाई 0 to 5 years, maximum 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप SPJIMR टारगेट कर सकते हो. आगे बढ़ते गए पेपर पैटर्न एंड कट ऑफ. सो पेपर पैटर्न को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट, द कॉमन एडमिशन टेस्ट. इवन आपका एडमिशन हो सकता है थ्रू GMAT. सो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द कैट. GMAT को लेकर भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 66. टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट. नाउ कैट में एग्जैक्टली आपके क्या कट ऑफ होने चाहिए, आइदर 85 परसेंटाइल और 90 और 95 परसेंटाइल. देखो गाइस, जितने अच्छे परसेंटाइल होंगे उतना बेहतर है, क्योंकि यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स है वहाँ आपको वेटेज मिलने वाला है. ठीक है, ऑल्दो
क्या वेटेज होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू किस फेस में होने वाला है, ओवरऑल जो वेटेज है ये कैंडिडेट्स के साथ शेयर किया जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखो कैट को लेकर +3 एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सो हमें यहाँ बढ़िया सी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, हमें लाने हैं एटलीस्ट 90 परसेंटाइल ताकि SPJMR में हमारा एडमिशन हो सके। देखो गाइज, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 24 क्वेश्चन आते हैं। सो आपको एटलीस्ट 15 to 17 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं। सो ओवरऑल 24 क्वेश्चंस, 4 RC विल बी देयर, 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपके जो 8 क्वेश्चंस होंगे दैट विल कंसिस्ट ऑफ पैरा जंबल 2 क्वेश्चंस, पैरा कंप्लीशन, समरी एंड ऑड वन आउट। सो इन पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करो। 15 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 90 to 95 परसेंटाइल आप इजीली ला सकते हो। दे आफ्टर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 4 सेट्स विल बी गिवन, ओके, कैरीज 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस सॉल्व एटलीस्ट 12 to 14, ओके। दे आफ्टर क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चंस। अब ये जो 22 क्वेश्चंस है आपको किन टॉपिक पर फोकस करना है? वेरी फर्स्ट वन अरिथमेटिक पर। अरिथमेटिक में आपके आ जाएंगे 7 to 8 क्वेश्चंस। यहाँ अगर मैक्सिमम फोकस करते हो भाई आपके चांसेस बेहतरीन बन जाएंगे। दे आफ्टर सेकेंड अलजेब्रा। इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स भाई अरिथमेटिक पे फोकस करो, यहाँ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैट एग्जाम जो है ना ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है। सो आपको क्वेश्चंस पिक करना आना चाहिए, जो डिफिकल्ट वन है उनको स्किप कर दो। अलजेब्रा में देखो किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो किसी में 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमें कौन से सॉल्व करने हैं जो हम इजीली पिक कर सके, क्योंकि हमें राइट वन सॉल्व करने हैं, हमें एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करनी है। थर्ड वन ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री पर आ जाएंगे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस। दे आफ्टर फोर्थ वन द नंबर्स, एंड नंबर पर आपको मिल जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। एंड द लास्ट वन द टफेस्ट वन द मॉडर्न मैथ। अब मॉडर्न मैथ पर अगर आप फोकस नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। सो ओवरऑल भाई 15 to 17 क्वेश्चंस यहाँ भी अगर आप सॉल्व करते हो विथ ग्रेट एक्यूरेसी, गुड। अगर पेपर काफ़ी डिफिकल्ट है एटलीस्ट 9 to 12 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। सो कैट का एग्जाम कब होता है? लास्ट वीक ऑफ नवंबर। आप डेट माइंड में फिक्स कर लो, 25, 26 एंड 27 ऑफ नवंबर, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यू विल लर्न एट बी एडुकेयर, ऑफलाइन एंड इवन ऑनलाइन आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल आउट ऑफ 198 ट्राई टू स्कोर 90 to 100 मार्क्स इन कैट, तब आपके परसेंटाइल जो है 95 to 99 परसेंटाइल तक आ सकते हैं। लेकिन SPJN के लिए आपके क्या कट ऑफ होने चाहिए? सो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करते हैं। यहाँ मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। देखो कैट 2023 सेक्शन वाइज आपकी जो परसेंटाइल होने चाहिए अबव 75, ये मिनिमम है, ओके। मिनिमम अगर आपके ये परसेंटाइल है तो भी आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो, दैट इज PI के लिए। ओवरऑल आपके परसेंटाइल होने चाहिए 85+। GMAT Jan 21 to 23 वर्बल 75, क्वांटिटेटिव 75, ओवरऑल इट शुड बी 85। एंड GMAT अगर मोस्टली आप नवंबर दिसंबर 23 का फोकस करते हो तो भी 75, ओवरऑल 85। देखो गाइस कैट में ठीक है 85 परसेंटाइल अप है। अब आगे प्रोसेस क्या होने वाला है? सो जो प्रोसेस है गाइस इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोफाइल बेस्ड दैट इज फर्स्ट फेज एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड सेकेंड फेज। शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यूज, the shortlist is based on their profile considering the following factors: consistency of the academic record, relevance of work experience for the specialization chosen, versatility and achievements. Meeting the minimum eligibility cutoff in the entrance exam is mandatory in case of a profile based shortlist to appear for the interview. यानी कि आपको ये minimum section wise and overall cutoffs तो क्रैक करने ही है तो ही आप eligible हो। Second phase shortlist, this phase is held after the availability of the entrance test score. Applicants in this phase are called for the interviews on the basis of their profile as given above, along with their performance in the entrance test. Detailed information related to the interview process or requirement will be shared with the students. Okay, applicant के साथ शेयर कर दी जाएगी। अब सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो कैसे बनेगी? The selection list is based on the composite score, which takes into account the applicant's profile, academic record, entrance test score, relevance of work experience, and performance in the 2 rounds of the group interviews. ठीक है, आपके 2 राउंड होने वाले हैं यहाँ, वो ध्यान रखना है, ठीक है। सो ओवरऑल क्या वेटेज होने वाला है भाई? आपको तो हर जगह मेहनत करनी है, ध्यान में रख लो भाई। कैट एटलीस्ट 85 to 90 परसेंटाइल आपके रहे तो आपके चांसेस यहाँ बनेंगे। ऑल दोज कैंडिडेट जिनके 90 to 95 परसेंटाइल है भाई आपको ज़रूर इसे टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके फैसिलिटीज़ अमेजिंग है गाइज। रैंकिंग में ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि लीडिंग कंपनीज जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। फॉर द इंडियन पार्टिसिपेंट्स इट इज अराउंड 24 lakhs फॉर 2 years and this fees includes tuition fee, basic hostel or accommodation and global fast track.
It does not include cost of travel, boarding, lodging, visa, insurance, incidentals for global fast track. दिस फी इज इंडिकेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू रिवीजन. तो हो सकता है कि अब ये 24 लाख जो फीस है, हो सकती है इन अपकमिंग ईयर 25, 26 भी चली जाए, लेकिन फॉर 2024 एंड 26 एडमिशंस दिस विल बी द 24 लाख रुपीज. इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए फीस है 33.32 लाख. गाइस फी स्ट्रक्चर हाई है, या फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलेगा आपको, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, लेकिन मेरिट में आना पड़ेगा गाइस. मेरिट कम मीन्स बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेरे एसेट फाउंडेशन मैथ स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स. सो भाई आप अगर 95 परसेंटाइल अप हो देन आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. सो ओवरऑल गाइज ये वर्थ इट है. क्यों? क्योंकि इनके प्लेसमेंट स्टैट्स बड़े अमेजिंग है. सी द स्टैट्स ऑफ समर इंटर्नशिप. 240 टोटल पार्टिसिपेंट्स. हाईएस्ट स्टाइपेंड जो मिला था 2.2 लाख पर मंथ. एवरेज स्टाइपेंड मिला था 1.58 लाख पर मंथ एंड मीडियन स्टाइपेंड 1.5 लाख. 7% इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड ओवर द प्रीवियस ईयर. लेकिन जो फाइनल प्लेसमेंट है 237 टोटल पार्टिसिपेंट. हाईएस्ट इंटरनेशनल जो पैकेज गया है 77.88 LPA एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 67.5 LPA. पार्टिसिपेटिंग कंपनीज वर 63. फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स वर 33. एवरेज सैलरी गई गाइज 33.02 LPA एज द टॉप IIMs प्रोवाइड यू गाइज 33.02. ग्रेट. Median salary 32.89 and see this stat guys, 92% of offers greater than 25 LPA. So guys जहां हम डिस्कस करते थे कि टॉप 10 परसेंटाइल को कितना मिला है, here you can see the 92% of candidates above the 25 LPA. 112 total pre-placement offers. Great, amazing stats guys. So definitely you have to target the SPJIMR. So start preparation for the CAT and be part of all these top-notch companies. Great exposure, great facilities guys. So start preparation for the CAT, and for its preparation you can join us at Dombivli Ghatkopar and Dadar for classroom preparation, and to interact live with us call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.